Hi guys, it's social study period. Our today topic is world climate. May you have the question in your mind. Why we study climate in geography? So you should know the climate has a great influence on economic condition of a country, especially on agriculture. So come to the topic. First we should know the difference between weather and climate. Weather is a day-to-day condition of heat, cold, humidity, dryness and rain in any place. So weather is defined as change in condition which may change hour to hour, day to day, even minute to minute. Sometimes you have a sunny day, sometimes you have a partially cloudy day, sometimes you may face a thunderstorm, and sometimes snow in your place where you live. So, during the different time of the day and the different time of the year, you would see different type of the condition are there. And when these condition change, this is called weather changing. Weather change from minute to minute, hour to hour and day to day, season to season. It's depend on temperature, rainfall and wind condition. As these conditions keep on changing day to day, maybe hour to hour, so weather may keep on changing. Suppose that the place where you live, you may usually observe the sunny day, but a few days in a year you find a foggy day. How you would define temperature of the place? Is your place usually foggy or sunny? Well, as you mentioned, usually days in your place are sunny but sometimes foggy. So sunny day define temperature of the place. The next one is climate. Climate is a weather condition in an area over a long period of time. The climate is different in different places on the earth, not the same. It means weather is a component of climate. The simple difference between the weather and climate is that climate is a short time change and weather is a short time change and climate is a long time change. According to the climate condition, people plan different activities. In warm climate, people can take part in outdoor and water sports. In cold climate, people can still take a part in outdoor activities but mostly prefer to stay home and enjoy the indoor games. So, the climate of a country especially influence on इकोनॉमिक कंडीशन पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको बताया गया ख़ास करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसका आबादी का 70% हिस्सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इस पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और क्लाइमेट मुख्तलिफ फैक्टर्स को अपनाने में हेल्प भी करती है. द चॉइस ऑफ क्रॉप, द नीड ऑफ एरीगेशन, वेजिटेशन, सॉइल, स्टॉर्म, इन सब चीज़ों में क्लाइमेट हेल्प करती है. Now, what are the factors which affect the climate? There are some elements which affect the climate. कुछ बहुत से ऐसे अनासर होते हैं जो भी किसी भी एरिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. कोई एरिया इक्वेटर से जितना दूर होगा वो ठंडा होगा और जो एरिया जितना करीब होगा वो इक्वेटर से गर्म होगा. डिस्टेंस फ्रॉम सी, अल्लाह ताला ने समंदर में एक बड़ी ताकत रखी है. वो इलाके जो समंदर के करीब होते हैं वो गर्मी में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं. अल्टीट्यूड और हाई फ्रॉम सी, समंदर की सतह से जो एरिया जितना बुलंद होगा वो उतना ही ठंडा होगा. इन पाकिस्तान इसकी एग्ज़ाम्पल आपको हिंदू कश, हिमालय, कराकरम की ले सकते हैं क्योंकि वो सतह समंदर से बहुत बुलंद हैं और सारा साल बर्फ़ की चोटियों से उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड. अब नेक्स्ट जो फैक्टर क्लाइमेट को अफेक्ट करता है दैट इज़ टेम्परेचर. अब पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं
जहाँ गर्मियों में सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, ख़ासकर पंजाब के बहुत से इलाके, और वो गर्मियों में बहुत गर्म रहते हैं और सर्दियों में सर्द रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर एंड विंड आर आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। एयर प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर एंड इट्स मेजर इन मिलीबार। एयर प्रेशर जैसे जैसे हम किसी भी एरिया में बुलंदी पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे हम मरी साइड पे, गलियात में ऊंची जगह पे जाते हैं तो वहाँ एयर प्रेशर कम होता चला जाता है। दैट आर द फैक्टर जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट वन, अफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस ऑन क्लाइमेट। Greenhouse changing in the amount of greenhouse gases the atmosphere can lead to warm and cooling the climate system. ग्रीन हाउस अफेक्ट में गैसेस की ज़्यादा होने की वजह से भी हमारी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफेयर इंक्रीज द ग्रीन हाउस अफेक्ट विच क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस अफेक्ट की वजह से जैसे जैसे हमारी गैसेस बढ़ती जा रही हैं और क्लाइमेट में भी चेंज आता जा रहा है। नेक्स्ट वन, क्लाइमेट में चेंज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड affect the climate. And last one is deforestation. Another reason for increasing the carbon dioxide in the temperature and that the number of forests on the earth is decreasing. Because number of forests are decreasing कि इंसान जो है आबादी में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इंसान अपने रहने के लिए उसने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और जब उसने दरख्तों को काटना शुरू किया तो इससे फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो गई तो ग्रीन हाउस अफेक्ट भी जो है उससे ग्रीन हाउस अफेक्ट भी अफेक्ट हुआ और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से हमारी क्लाइमेट में भी बहुत सा चेंज आया। द लास्ट वन, वाई यू कैन हेल्प रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमें क्लाइमेट में चेंजिंग के अफेक्ट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। टर्न ऑफ लाइट व्हेन नोबडी इन द रूम, अगर कमरे में कोई भी ना हो तो लाइट को बंद करना चाहिए। सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, पानी कोई भी इस्तेमाल ना कर रहा हो तो टैप को कम्प्लीटली बंद कर लेना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हुई है कि दरख्तों को काटा जा रहा है। नाउ वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम किया जा सके। वी शुड यूज़ साइकिल इंस्टेड ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि उनसे जो गैस निकलती है वो भी हमारी एटमॉस्फेयर को डैमेज करती है, हमारी एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड करती है। और हमें अपने वी शुड ड्राई आवर क्लॉथ अंडर द सन, हमें अपने सूरज में कपड़े गर्म जो है वो सुखाने चाहिए इंस्टेड ऑफ क्लॉथ ड्रायर, कि हम क्लॉथ ड्रायर का इस्तेमाल करें। बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन इन योर रबिश, कीप स्टफ आउट ऑफ द लैंडफिल साइट्स, किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्ट रिसाइकल। और हमें मोस्टली जो है वो अपने वेस्ट से जो मटेरियल है, पेपर है, मेटल्स हैं, ग्लास हैं एंड सम प्लास्टिक मटेरियल, वी शुड बी रीयूज़ इट, ताकि पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो और हमारी क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो। नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर। इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स। आपने इनके डिफरेंट जो है लेसन के अंदर से इसके आंसर जो है वो चेक कर लेने हैं और ये पेज भी करना है। पेज 12 पे जितने क्वेश्चन हैं, देन पेज 13 पे जो आपकी वर्कशीट है इसको भी आपने सॉल्व आउट करना है।